हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसका डेरिवेशन डिराइव किया था। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है? द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन व्हिच इज डायरेक्टेड along the radius and toward the center of the circle is called as the centripetal acceleration. So let us see what is the combination of centripetal and tangential acceleration when the particle performs a non-UCM. तो देखो, जैसे कि मैंने कहा था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो पार्टिकल को किस वजह से आता है? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. The centripetal acceleration is acquired by the particle due to change in direction of velocity, whereas the tangential acceleration is acquired by the particle due to change in magnitude of velocity. So whenever the particle performs a non-uniform circular motion, जब तुम्हारा पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदलता है, इसीलिए उसको टैंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगा, और उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बदलती है, और इसीलिए उसको रेडियल एक्सेलरेशन भी आएगा. मतलब ये दोनों एक्सेलरेशन पार्टिकल को रहते हैं. कब रहते हैं? जब पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है. और जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, और इसीलिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, और इसीलिए उसको टैंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं रहता. कौन से मोशन में? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भले ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलते रहती है, और डायरेक्शन बदलने की वजह से कौन सा एक्सेलरेशन आता है? रेडियल, यानी कि सेंट्रीपिटल. तो इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रेडियल एक्सेलरेशन यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहता है. तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? कि whenever the particle performs UCM, it has only one acceleration, that is radial. It means the centripetal. And whenever the particle performs a non-uniform circular motion, it has two kind of acceleration, that is radial acceleration and the tangential acceleration. Now we are going to discuss today how the effective acceleration of both of them is calculated. How the effective acceleration of both of them is calculated in non-UCM. So just now we can see that this is the figure in which see the figure. This is a particle which is performing non-uniform circular motion in an anti-clockwise direction. Here is the particle which is performing non-uniform circular motion in an anti-clockwise direction. So if the particle performs a non-UCM, so definitely it has two kind of acceleration. One is the radial and other one is the tangential. So you know what? How the radial acceleration is directed? Radial acceleration is directed along the radius and toward the center, and tangential acceleration is directed along the tangent. देखो, radial acceleration is directed along the radius and toward the center, and tangential acceleration directed along the tangent. So it means what is the angle between the radial acceleration and the tangential acceleration? The inclination or the angle between the tangential acceleration and the radial acceleration is 90 degree, right? अभी मुझे इन दोनों का नेट एक्सेलरेशन, नेट बोले तो रिजल्टेंट, यू कैन से द नेट एक्सेलरेशन और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है, तो हम लोग ने मैथमेटिकल मेथड्स चैप्टर में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था. उसमें क्या पढ़ा हमने? कि कोई भी दो वेक्टर्स, if the two vectors are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of the parallelogram, then if the two vectors are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of the parallelogram, then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram. Then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram, which is the effective of this two vector. Okay? तो अगर ये तुम्हारा AR bar is one of the linear the radial acceleration, AT bar is the another one acceleration which is along the tangent, तो फिर ये दोनों वेक्टर्स एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड अगर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो इन दोनों का इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो होगा या नेट एक्सेलरेशन जो होगा, ये होगा ऐसे. कैसे? ऐसे होगा along the diagonal. ठीक है, ये कैसा होगा? along the diagonal, यानी नेट एक्सेलरेशन विल बी like that, which is along the diagonal. तो ये है तुम्हारा A net. Are you getting?
ए नेट। तो अभी ए नेट कैसे निकालते हैं सुनो। हाउ विल कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेशन। द नेट एक्सेलरेशन और द इफेक्टिव एक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड एज, आपको याद होगा हम लोग ने स्केलर्स वेक्टर्स टॉपिक में ये फॉर्मूला पढ़ा था, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, whereas p and q these are the two vectors and r is the resultant of these two vector। तो अभी यहाँ पर p का काम कर रहा है at और q का काम कर रहा है ar। तो अब मैं कैसे लिखूंगी, p के बदले आई राइट at स्क्वायर, q के बदले आई राइट ar स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स at ar cos ऑफ थीटा। But what is the angle between the tangential acceleration and the radial acceleration? That is 90 degree। तो ये डालेंगे cos 90। तो ये देखो यहाँ पर मैंने लिख के रखा है। तो a net मतलब नेट एक्सेलरेशन यानी कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज द इफेक्टिव ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो मैंने r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा ये वाला फॉर्मूला लगाया। p और q के बदले a और p को ar या at बोलो, q को दूसरा नाम ले लो। तो इस दोनों में से कोई अगर एक p है और कोई अगर q है तो आपका ये स्टेटमेंट आएगा यानी ये इक्वेशन आएगा। अब दोनों के बीच में एंगल हमने देख रहे डायग्राम में देख रहे कितना एंगल है दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो मैंने देखो ये टेंजेंट है अलोंग द टेंजेंट और ये अलोंग द रेडियस। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल क्या होता है 90। तो cos 90 क्या हो गया बोलो, cos 90 हो गया 0। तो 0 into this 0। देखो cos 90 0 होता है एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज कंप्लीटली 0। तो ये पूरी टर्म 0 हो जाती है। तो ये सब टर्म अगर 0 हो गया तो हमको नेट एक्सेलरेशन क्या मिलेगा। सो वी विल गेट द नेट एक्सेलरेशन इज अंडर रूट ऑफ ar स्क्वायर प्लस at स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट वी कैन कैलकुलेट द इफेक्टिव linear acceleration। This net acceleration is also called as a linear acceleration। So we can calculate the effective linear acceleration in non-UCM is under root of ar square plus at square। And you know that कि in UCM अगर UCM होता तो क्या होता। तो in UCM आपको पता है कि at क्या होता है रे 0 होता है। देखो in UCM ये तो हमारा नॉन UCM में आया, in non UCM ये हमारा नॉन UCM में आया है। लेकिन in UCM at is equal to 0। Why? Because in UCM alpha is 0। UCM में अल्फा 0 होता है और हमें पता है कि at is equal to r अल्फा होता है। तो अगर अल्फा 0 तो at 0। Are you getting? In UCM अल्फा 0 and at is equal to r अल्फा। तो अल्फा 0 hence at 0 in UCM। तो if at is 0 in UCM तो अगर यहाँ पर at को मैं 0 डाल दूं तो मैं कहूंगी कि इफेक्टिव a लीनियर एक्सेलरेशन इज सिंपली अंडर रूट ऑफ ar स्क्वायर ओनली और ar स्क्वायर का रूट ar एंड हेंस इन UCM a linear is equal to ar, whereas in non UCM a linear is under root of ar square plus at square। So this is what about the relation, how the tangential acceleration and the radial acceleration they are related and how you can calculate the effective linear acceleration। अभी next जो हम पढ़ने जा रहे हैं that we are going to discuss is a centripetal force and the centrifugal force। next topic जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि वो इसी से related है। तो centripetal force और centrifugal force के बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो centrifugal को समझने के लिए पहले हमको centripetal को समझना पड़ेगा। For understanding the centrifugal force we must discuss about the centripetal force। So what do you mean by centripetal force? तो देखो जैसे तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया था वैसे ही डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स ये कैसा आएगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग circular motion, the force acting on a particle performing circular motion which is directed along the radius, and towards the center of the सर्कल। देखो डेफिनेशन,
the force acting on a particle performing circular motion which is directed along the radius and toward the center of the circle is called as centripetal force. अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो डेफिनेशन पढ़े जैसे लगती, तो आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? तो यहाँ पर फोर्स के अलावा हमने बोला था द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन व्हिच इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स में कैसा कनेक्शन है? तो हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था। क्या पढ़ा है न्यूटन्स का सेकंड लॉ? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करते हैं। तो अगर मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है तो एफसीपी सेंट्रीपिटल फोर्स इज मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एफसीपी इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के हम लोग ने फॉर्मूले पढ़े थे तीन फॉर्मूले हम लोग ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के पढ़े थे। एक क्या पढ़ा था बोलो? आर ओमेगा स्क्वायर, दूसरा वी स्क्वायर बाय आर और तीसरा वी ओमेगा। नाउ आई एम गोइंग टू मेक द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एज वेल एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है एम ए, तो एम इंटू ए सी पी और आइदर यू कैन से ए रेडियल। तो फिर ए रेडियल के फॉर्मूले यहाँ पर डाल दो। तो देखो आर ओमेगा स्क्वायर डाल दिया तो ये एम आर ओमेगा स्क्वायर बन गया। दूसरा फॉर्मूला ए आर के बदले वी स्क्वायर बाय डाल तो एम वी स्क्वायर बाय आर बन गया। और तीसरा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम इंटू ए आर के बदले वी ओमेगा तो एम वी ओमेगा। इस प्रकार ये तीनों भी फॉर्मूले सेंट्रीपिटल फोर्स के हैं। तो कौन से तीन देखो? एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाय आर एंड एम वी ओमेगा। ऑल दिस आर द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तीन फॉर्मूले सेंट्रीपिटल फोर्स के एम वी स्क्वायर बाय आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर और एम वी ओमेगा। So these are three formulae are indicating the magnitude of centripetal force. But if you want to write in the vector notation, अगर आप इसको वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहते हो सेंट्रीपिटल फोर्स को, तो ये वेक्टर नोटेशन में कैसे आएगा? तो एफ सी पी बार या सेंट्रीपिटल फोर्स एफ बार इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा माइनस एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाँ, और आर बार या आर बार। तो व्हाट इज मीन बाय आर बार? ये रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन बताने का काम करता है आर बार। तो ये माइनस साइन क्यों आ रहा है? बिकॉज आपको पता है कि रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सेंटर टू द पोजीशन होता है। रेडियस वेक्टर कैसा होता है? देखो, फ्रॉम द सेंटर टू द पोजीशन। और सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा होता है? अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर। तो ये तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये तुम्हारा रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन है। तो दोनों क्या, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है क्या? रेडियस वेक्टर drawn from the center to the position and centripetal force along the radius and toward the center, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इनडायरेक्टली मैं ऐसा बोलूंगी कि सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है और hence the negative sign is there. So you can write minus m omega square r bar. अब दूसरा ये वाला फॉर्मूला जो है, ये वाला अगर वेक्टर नोटेशन में लिखना है तो माइनस ऑफ एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू आर कैप लिखते हैं। अब यहाँ पर r के ऊपर बार नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि कोई भी वेक्टर अगर डिनोमिनेटर पोजीशन में आता है तो यू कैन नॉट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन इन डिनोमिनेटर पोजीशन। तो उस वेक्टर की डायरेक्शन बताने का काम हमने इसी स्केलर वेक्टर चैप्टर में पढ़ा था या मैथमेटिकल मेथड चैप्टर में, कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने का काम उसका यूनिट वेक्टर करता है। तो अगर मुझे आर बार वेक्टर की डायरेक्शन बताना है तो मैं यूनिट वेक्टर से यहाँ पर बता रही हूँ। तो फिर आप बोलेंगे फिर मैडम आपने यहाँ पर आर कैप क्यों नहीं लिखा? उसका रीजन ये था कि यहाँ पर आर जो था वो न्यूमरेटर पोजीशन में था और न्यूमरेटर पोजीशन में हम डायरेक्शन दिखा सकते, लेकिन यहाँ पर जो आर की पोजीशन है वो डिनोमिनेटर पोजीशन में है और डिनोमिनेटर पोजीशन में डायरेक्शन दिखाना होगा तो ऐसा बार लिखने का रूल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी डायरेक्शन बताने का काम ये कैप कर रहा है। तो ये आर कैप है, ये यूनिट वेक्टर है, किसका? रेडियस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो ये इसका काम है सिर्फ डायरेक्शन बताना। और इसके अपोजिट दिशा में देखो, इसके अपोजिट दिशा में ये तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स है और इसलिए यहाँ पर निगेटिव साइन है। उसके बाद तीसरा जो है वो एम वी ओमेगा, ये वाला, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये एम बाहर आएगा और वी ओमेगा के बदले आपको पता है ओमेगा बार क्रॉस वी बार। ये कौन होता है? ओमेगा बार क्रॉस वी बार इज अ रेडियल एक्सेलरेशन। ओमेगा बार क्रॉस वी बार ये रेडियल एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर निगेटिव साइन नहीं आएगा, प्लस आएगा। ऐसा क्यों बताती हूँ? क्योंकि ओमेगा बार क्रॉस वी बार रेडियल एक्सेलरेशन होता है और रेडियल एक्सेलरेशन जो आता है
वो भी अलोंग द रेडियस और टुवर्ड द सेंटर होता है। तो यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन के फेवर में, सुनो, रेडियल एक्सेलरेशन के फेवर में ही तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, यानी दोनों एक सेंस में, सेम सेंस में है, और यहाँ पर इसीलिए प्लस साइन आएगा। तो ये हो गया तुम्हारे सेंट्रीपिटल फोर्स के वेक्टर वाले इक्वेशन, वेक्टर नोटेशन। The centripetal force can be expressed in vector form like this: minus m omega square r bar, then minus mv square by r into r cap, and then m into omega bar cross v bar। हो गया ये सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभी हम पढ़ेंगे कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है और इसका सर्कुलर मोशन में क्या रोल है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये ऐसा फोर्स है जो पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करने के लिए सपोर्ट करता है या प्रोवाइड करता है। तो बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। Whenever the body wants to perform the circular motion, it needs a centripetal force. Without centripetal force, it is not possible to maintain the circular motion. कोई भी बॉडी को अपनी सर्कुलर मोशन अगर मेंटेन करना है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना बहुत जरूरी है। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकती, कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। अगर उसको अपना सर्कुलर मोशन मेंटेन करना है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत लगेगी ही लगेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि बॉडी को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो कौन है जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, कि बॉडी को कहाँ से मिलता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लेट मी टेल यू दैट कि बॉडी को ये सेंट्रीपिटल फोर्स ऑल द रियल फोर्सेस से मिलता है। अगर एक आधे बॉडी पे जितने भी रियल फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, उन सभी रियल फोर्सेस का समेशन जो आएगा वो इफेक्टिव रियल फोर्सेस, दैट इज द समेशन ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस, दैट इज द समेशन ऑफ all real forces, yeah, either you can say summation of real forces will provide the body the necessary centripetal force। जितने भी रियल फोर्सेस उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, वो रियल फोर्सेस उस बॉडी को सर्कल में घूमने के लिए, सर्कल में मोशन परफॉर्म करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो उसकी मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि हमारी जो अर्थ है वो मून के सराउंडिंग में रिवॉल्व करती है। सबको मालूम, सॉरी, हमारा जो मून है, हमारा जो अर्थ है वो सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है। हमारा जो अर्थ है वो सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है। तो अर्थ को सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व करने के लिए डेफिनेटली सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेगा? तो अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अर्थ को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है ताकि अर्थ सन के सराउंडिंग में घूम सके। अभी मून जो है वो हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, तो मून अर्थ के सराउंडिंग में घूमता है। मून जो है वो अर्थ के सराउंडिंग में घूमता है। तो मून को भी अर्थ के सराउंडिंग में सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सो आई एम डिस्कसिंग समवॉट एग्जांपल्स ऑफ रियल फोर्सेस which is providing the necessary centripetal force to the body so that body can maintain a circular motion। तीसरा मैं एग्जांपल आपको बताना चाहूंगी तुम्हारा केमिस्ट्री का, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो इलेक्ट्रॉन को भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मिलता कहाँ से है? तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है ताकि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर मोशन मेंटेन कर पाए। एक और एग्जांपल बताती हूँ कि व्हेन द बस इज टेकिंग अ टर्न अलोंग द कर्व हॉरिजॉन्टल रोड, या व्हेनेवर एक आधा सर्कुलर टर्न बस ले रही है तो बस को भी सर्कुलर टर्न लेने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। तो उस वक्त उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है? तो उस वक्त उस सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मिलता है द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल एंड द रोड सरफेस। मतलब तुम्हारा व्हीकल जब उस सर्कुलर टर्न में चलेगा तो तुम्हारा व्हीकल जब उस सर्कुलर टर्न से चलेगा तो वो व्हीकल के टायर्स और रास्ते का सरफेस, इसके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स उस बस को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ताकि तुम्हारी बस सर्कुलर टर्न ले सके। एक और एग्जांपल बताती हूँ। एक आधा पत्थर ले लो, एक आधा ऑब्जेक्ट ले लो, इसको धागे से बांध दो और ऐसे सर्कल में घुमाओ, तो उस वक्त वो पत्थर अपनी सर्कुलर मोशन मेंटेन कर पा रहा है।
क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसे भी कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो धागे में जो टेंशन है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम डिस्कस कर सकते हैं। तो सम फ्यू एग्जाम्पल्स आर वी हैव डिस्कस ओवर देयर। तो इन सभी एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि हर वक्त बॉडी को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। कभी ग्रेविटेशनल फोर्स देता है, तो कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देता है, तो कभी टेंशन इन द स्ट्रिंग देता है, तो कभी कभी फ्रिक्शनल फोर्स देता है। तो हर बार कोई ना कोई ऐसा रियल फोर्स है जो बॉडी को सर्कुलर मोशन मेंटेन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स देने का, प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे ऑल समेशन ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज व्हेनेवर इट बॉडी परफॉर्म्स अ सर्कुलर मोशन। तो यही वो रियल फोर्सेस है जो बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स देने का काम करते हैं। तो ध्यान में रखना। तो इनडायरेक्टली मैं ऐसा बोलूंगी कि सेंट्रीपिटल फोर्स ये रियल फोर्स है, क्योंकि ये रियल फोर्सेस की वजह से अराइज हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स ये रियल फोर्स है, ये रियल फोर्सेस की वजह से अराइज हुआ। लेकिन अभी मैं जो बताने जा रही हूँ वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताने जा रही हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसकी डेफिनेशन देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की क्या है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन बिल्कुल सेंट्रीपिटल की है, लेकिन ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखा के दे दी है। तो डेफिनेशन देखो एक बार, सिर्फ बनाएंगे कैसे डेफिनेशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। So what is the definition of centrifugal force? The force acting on a particle performing circular motion, which is directed along the radius, and away, from the center, of the circle, is called as centrifugal force। देखो क्या कहा हमने, the force acting on a particle performing circular motion which is directed along the radius and away from the center of the circle is called as centrifugal force। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम कहाँ पे अनुभव करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल देती हूँ। Where we have experienced this centrifugal force, let us discuss सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखो जब हमारे यवतमाल के आजू बाजू में सब घाट के रास्ते हैं, राइट। तो जब हम बस के अंदर बैठे हुए हैं, यानी हम लोग हैं पैसेंजर्स, and we are sitting in the bus and the bus is taking a turn along the curved road. At the moment when the bus is taking a turn, the passengers which are sitting in the bus, they are experiencing kind of force, and they are just experiencing kind of force which is just push away the passengers from the center। कि आपकी बस ऐसे टर्न ले रही तो पैसेंजर ऐसे हो जाते, ना चाहते हुए भी हम बाजू वाले की तरफ पुश हो जाते हैं। तो हम हालांकि रॉड को बहुत एकदम पकड़ के रखते हैं, स्टिल जब बस टर्न लेती स्टिल वी आर जस्ट गिविंग और वी आर एक्सपीरियंसिंग अ पुश अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये एक ऐसा फोर्स होता है जो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ से आया है, बट हमें ये जरूर पता चलता है कि जब बस ने टर्न लिया था तब हमने ये अनुभव किया, राइट। ये फोर्स का हमें ओरिजिन नहीं पता चलता कि ये कहाँ से अराइज हुआ, फ्रॉम वेयर इट अराइजेस, बट हमें इसका जो परिणाम है वो हम अनुभव करते हैं, राइट। कि जैसे ही बस टर्न लेती है पैसेंजर्स आर एक्सपीरियंसिंग अ काइंड ऑफ पुश अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये वो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसको हमने सूडो फोर्स कहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय सूडो? नॉट रियल, इट इज नॉट अ रियल फोर्स। ये रियल फोर्स नहीं है, इट इज नॉट रियल फोर्स। तो ऐसा क्यों बोला है कि इट इज नॉट रियल फोर्स? तो इसका रीजन ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये कहाँ से आया ये हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन क्यों आया ये जरूर पता चल रहा है। मतलब जैसे ही तुम्हारे बस ने सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सर्कुलर टर्न लिया और जैसे ही बस ने टर्न लिया उस बस के अंदर बैठे हुए पैसेंजर ये फोर्स अनुभव करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से आया, और सेंट्रीपिटल फोर्स किस वजह से आई है हमें मालूम है कि सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का ओरिजिन हमें मालूम है,
लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ओरिजिन हमें नहीं मालूम और इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग सूडो फोर्स कहते हैं या नॉट रियल फोर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि सुनो, जैसे ही बस ने तुम्हारा टर्न ले लिया तो बस नॉन इनर्शिया में आ गई। लिसन केयरफुली नाउ, इट्स अ पॉइंट टू बी नोटेड। व्हेन द बस इज टेकिंग अ टर्न अलोंग द कर्व रोड, द बस इज इन अ नॉन इनर्शिया and the passengers which are sitting in the bus, they are experiencing this centrifugal force when the bus is in a non inertia। बस जब नॉन इनर्शिया में थी तब बस के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स ये फोर्स का अनुभव कर रहे थे। और हमारा न्यूटन कहता है कि अगर एक आधी बॉडी इनर्शिया में होगी तो उसको इनर्शिया से बाहर निकालने के लिए फोर्स लगाओ, अनबैलेंस फोर्स। हमारा न्यूटन ये कहता है कि अगर एक आधी बॉडी इनर्शियल फ्रेम में होगी या इनर्शिया में होगी तो उसको इनर्शिया से ओवरकम करने के लिए, यानी इनर्शिया से बाहर निकालने के लिए अनबैलेंस फोर्स लगा। तो ये तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हम लोग बिना कारण ये फोर्स अनुभव कर रहे थे। बिना कारण बोले तो ये तो हम लोग बस जब नॉन इनर्शिया में तब अनुभव कर रहे थे, तो न्यूटन्स का लॉ इसमें तो वैलिड हुआ नहीं। अगर हम न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, अगर इस एग्जाम्पल में अप्लाई करने जाए तो आप बोलेंगे कि मैडम यहाँ तो ये वैलिड नहीं हो रहा। क्यों नहीं वैलिड हो रहा? क्योंकि पैसेंजर्स ने ये फोर्स तब अनुभव किया था जब बस नॉन इनर्शिया में थी, और नॉन इनर्शिया में फोर्स तो वैलिड होता नहीं है। तो इसका मतलब फिर भी हमको न्यूटन्स का लॉ अगर नॉन इनर्शिया में जबरदस्ती लगाना पड़ेगा तो हमें एक ऐसा फोर्स इमेजिन करना पड़ेगा कि जो कि रियल में है नहीं, लेकिन उसका परिणाम हम अनुभव कर रहे हैं। तो to make Newton's law of motion valid, listen carefully. I am giving you the answer कि why the centrifugal force is not a real force, it is a pseudo force. I am giving you the explanation of this. Listen carefully now. Newton's law of motion, all the Newton's law of motion are valid in inertial frame of reference. But the passengers which are sitting in a bus, they are experiencing this force in non-inertia. So hence the Newton's law of motion is not valid in non-inertial frame of reference. And if you want to apply Newton's law of motion, जबरदस्ती in this example, कि अगर आप Newton's law of motion इस एग्जाम्पल में जबरदस्ती लगाना चाहते हो तो आप तो लगा नहीं सकते क्योंकि वो नॉन इनर्शिया में अनुभव किया था। फिर भी आप बोले कि मैडम हम जबरदस्ती नॉन इनर्शिया में इस एग्जाम्पल में हम न्यूटन का लॉ लगाना चाहे तो आपको एक ऐसा फोर्स इमेजिन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा जो कि रियल में नहीं है, मतलब नॉट रियल है, विच इज नॉट रियल, विच इज इमेजिन। आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ऐसा फोर्स है जो हम अनुभव कर रहे हैं, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अनुसार हम अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा एक्सेलरेशन होगा जिसकी वजह से ये फोर्स, यानी कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स होगा जिसकी वजह से हम इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जबरदस्ती अप्लाई करने के लिए, जबरदस्ती वैलिड बनाने के लिए हमें एक ऐसा फोर्स इमेजिन करना पड़ता है जो कि रियल में नहीं है, और इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को नॉन रियल फोर्स कहते हैं, नॉट रियल फोर्स कहते हैं, सूडो फोर्स कहते हैं, क्योंकि इसका ओरिजिन हमें पता नहीं होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का ओरिजिन हमें पता होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ओरिजिन हमें पता नहीं होता है। और सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, देखो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये CFF यानी कि FCF सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये FCP सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर। तो बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड। सेंट्रीपिटल फोर्स ये रियल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये नॉन रियल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स का ओरिजिन हमें मालूम है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ओरिजिन हमें नहीं मालूम। सेंट्रीपिटल फोर्स को अप्लाई करने के लिए या अपने को देखने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अप्लाई करने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। दीज आर द डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट दैट आर ऑलरेडी डिक्टेटेड इन द क्लास। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को अप्लाई करने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अप्लाई करने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स का ओरिजिन हमें मालूम है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ओरिजिन हमें नहीं मालूम। सेंट्रीपिटल फोर्स ये रियल फोर्सेस की वजह से, तो ये रियल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये रियल फोर्स नहीं है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, ठीक है। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओवर हियर एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड ओवर हियर।
एंड व्हाट इज दैट अगेन, एक और पॉइंट है सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल का, इसका मैग्नीट्यूड उसका मैग्नीट्यूड, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन वाइज बताना है, इफ यू वांट टू write or if you want to express the centrifugal force FCF in vector notation, वेक्टर नोटेशन में लिखना है, तो एग्जैक्टली ये जो तुम लोग ने सेंट्रीपिटल में लिखे ना, सेंट्रीपिटल के जो वेक्टर नोटेशन लिखे हैं एग्जैक्टली उल्टे यानी अपोजिट हो जाते हैं। देखो यहाँ पर माइनस है, माइनस में यहाँ पे प्लस प्लस आएगा, तो ये आएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर बार प्लस आएगा, यहाँ पर भी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर इंटू आर कैप आएगा, और इसमें अपोजिट आएगा, प्लस के बदले माइनस आएगा एम इंटू ओमेगा बार क्रॉस वी बार आएगा। अब ऐसा क्यों है, तो देखो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी इनडायरेक्टली रेडियस वेक्टर के फेवर में होता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो रेडियस वेक्टर के फेवर में है, फेवर में है इसलिए उसको फेवर कर रहा है ना, तो मतलब उसके सेम सेंस में है, इसलिए यहाँ पे भी पॉजिटिव यहाँ पे भी पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर अपोजिट क्यों आया, क्योंकि ओमेगा बार, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि ओमेगा बार क्रॉस वी बार क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन होता है, और रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये रेडियल एक्सेलरेशन के अपोजिट में होता है, और इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आएगा। अब ये एम 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 इनके ऊपर बार क्यों नहीं आया, मास तो स्केलर क्वांटिटी है ना, मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी, तो मास तो बार नहीं आएगा बिकॉज वो स्केलर क्वांटिटी वो सिर्फ मैग्नीट्यूड में आती है। तो ये हो गए तुम्हारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वेक्टर नोटेशन। एंड व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिल्कुल सेम जैसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, जितना मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, और वही फॉर्मूले आएंगे जो ये देखो एम वी स्क्वायर बाय आर एम आर ओमेगा स्क्वायर और एम वी ओमेगा, दिस आर द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एज वेल एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हालांकि डायरेक्शन वाइज वे एक दूसरे के अपोजिट है। गॉट इट। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप कहाँ कहाँ अनुभव करते हैं उसके मैं एग्जांपल थोड़ा इन शॉर्ट बता देती हूँ। हालांकि ये आपको 11वीं में कंसेप्ट है, ये सब 12वीं में आपको ये लिखना नहीं है, बट दिस आर द बेसिक्स। तो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कहाँ कहाँ अनुभव करते हो, जब जायंट व्हील या मेरी गो राउंड, जब मेरी गो राउंड या जायंट व्हील घूमता है तो वो जो छोटे छोटे बच्चे देखो जो है वो घोड़े पे बैठे रहते हैं, तो जब मेरी गो राउंड घूमता है तो घोड़े पे बैठे हुए बच्चे ऐसे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अज्यूम टू, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन and this is what a merry-go-round, and this is rotating like this in this way. So at the moment the speed goes on increasing, at the same time ये ऐसा 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 दूर दूर जाता है, away from the center फेंका जाता है। कौन, वो जो बच्चा जो झूले पे बैठा हुआ है, तो away from the center it goes like that. How? Whenever the angular speed goes on increasing, the child और the merry-go-round के जो पिलर थे वो ऐसे away from the center दूर जाते हैं। तो ये काय की वजह से, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। हमारे किचन के अंदर हम का एक एग्जांपल बताती हूँ, ब्लेंडर या जो तुम्हारा दाल वगैरह घोलने का जो रहता है ना, तो उसको ब्लेंडर कह सकते हो आप लोग। तो जब ब्लेंडर घुमाते हैं ना, तो जो क्रीम सेपरेटर आप यू कैन से, तो क्रीम है अवे फ्रॉम द सेंटर फेंका जाता है बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर तुम्हारा वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल बताती हूँ कि वॉशिंग मशीन के अंदर एक ऐसा ड्रायर करके रहता है, ड्रायर, जिसमें एक कपड़े हम लोग डालते हैं, यहाँ पर ऐसे होल रहते हैं, और हम लोग गीले कपड़े इस ड्रायर के अंदर डालते हैं। एट द मोमेंट जब हम ड्राई करने के लिए बटन ऑन कर देते हैं, ये रोटर जो है, ये परफोर सिलेंड्रिकल रोटर, ये ऐसे घूमता है, एंड दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स forces out the water molecules, the centrifugal force forces out the water molecules away from the center, एंड ये पानी के मॉलिक्यूल जो है कपड़ों के अंदर है वो दूर फेंके जाते हैं ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और तुम्हारे कपड़े ड्राई हो जाते हैं। और मैंने बोला था एक और एग्जांपल, बल्किंग ऑफ अर्थ एट इक्वेटर एंड फ्लैटनिंग एट पोल्स। मतलब इक्वेटर का जो हम लोग को ज्योग्राफी में भी हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि हमारा अर्थ का जो शेप होता है वो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं होता। हमारी अर्थ जो है वो इक्वेटोरियल रीजन में थोड़ी चपटी होती है, इक्वेटोरियल रीजन में हमारी अर्थ पोलर रीजन में हमारी अर्थ थोड़ी चपटी होती है, और इक्वेटोरियल रीजन में थोड़ी फैली हुई होती है। देखो दैट इज स्लिप ऑफ टंग। तो ये जो है पोलर रीजन में थोड़ी चपटी होती है और इक्वेटोरियल रीजन में थोड़ी फैली हुई होती है। तो ये हमारा अर्थ का लिटिल बिट शेप होता है कि यहाँ पर थोड़ा बल्गी टाइप की होती है, बल्गी, और यहाँ पर फ्लैटनिंग। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो ये अर्थ की इक्वेटोरियल रेडियस है और ये है हमारे अर्थ की पोलर रेडियस, राइट। तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या बोला हमने, FCF इज mr ओमेगा स्क्वायर, राइट।
तो अगर इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा है तो इक्वेटर वाला पोर्शन, इक्वेटर पे जो एलिमेंट होगा वो ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अनुभव करेगा, और पोलर रेडियस जो है, ये देखो पोलर रेडियस इज लेस देन इक्वेटोरियल रेडियस। तो अगर एक आधा पर्सन या अगर एक आधा एलिमेंट या जमीन का टुकड़ा ये इक्वेटोरियल वाला टुकड़ा है तो वो ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अनुभव करेगा, क्योंकि वहां की रेडियस ज्यादा है, तो इसलिए वो ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, तो डे बाय डे हल्का हल्का, लिटिल बिट, नॉट एग्जैक्टली माइन्यूटली बट लिटिल बिट, थोड़ा 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 वहां से वो एलिमेंट टूट जा रहा है। इट मीन्स कि वो जमीन का एरिया थोड़ा अवे फ्रॉम द सेंटर जा रहा है, इसलिए वहां पर वो थोड़ी फैली हुई हो गई, बल्गी हो गई, और यहाँ पर थोड़ी सी चपटी हो गई, ये नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकली शेप। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक और एग्जांपल बताती हूँ, बकेट फुल ऑफ वाटर, एक बकेट है जो पानी से भरी हुई है, और उस बकेट को, पानी से भरी बकेट को आप पहले थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऑसिलेट करवाना, फिर थोड़ा और कर्व बड़ा करना, देन और थोड़ा बड़ा, एंड लाइक दैट एंड धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ा के उसको वर्टिकल सर्कल में घुमाना, तो उस बकेट के अंदर का पानी बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा। ऐसा क्यों रे? क्योंकि वेट ऑफ द वाटर इनसाइड द बकेट, बकेट के अंदर जो पानी का वजन था उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर लेता है। लेकिन एक पर्टिकुलर स्पीड अक्वायर करने के बाद ही, अगर उस स्पीड से कम स्पीड के साथ, जो एक पर्टिकुलर स्पीड उसको चाहिए थी, उससे कम स्पीड के साथ अगर उस बकेट को आप वर्टिकल सर्कल में, जैसे मैंने बकेट में पानी ले लिया एंड तुरंत मैं उसको वर्टिकल में घुमाऊंगी ना, तो सारा पानी नीचे गिर जाएगा, तब ये सक्सेसफुल नहीं होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले बकेट में पानी डाल के मुझे उसको धीरे धीरे थोड़ा ऑसिलेट करवाना पड़ेगा, एंड देन ऑसिलेट करके करके थोड़ा मैं कर्वेचर और डीप कर दूंगी, एंड देन लाइक दैट एंड लाइक दैट एंड लाइक दैट एंड देन आई लाइक दैट। तो इस प्रकार उसकी स्पीड, रोटेशनल स्पीड बढ़ते जाएंगी, और उसको एक सफिशिएंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पे जनरेट होगा, जो उस बकेट के अंदर के पानी के वजन को पूरी तरह से बैलेंस कर लेगा, एंड द वाटर विल नॉट स्पिल आउट। फिर एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कॉइन, एक आधी रोटेटिंग डिस्क है, रोटेटिंग डिस्क, उसके ऊपर आप कॉइन रख दीजिए, जैसे जैसे तुम्हारे रोटेटिंग डिस्क की एंगुलर स्पीड बढ़ती जाएंगी, एक ऐसा मोमेंट आएगा जहां पर वो कॉइन अवे फ्रॉम द सेंटर फेंका जाएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर तुम्हारे पैथोलॉजी में सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूज मशीन, तो उस सेंट्रीफ्यूज मशीन में वो टेस्ट ट्यूब्स लगे रहते हैं जिसमें ब्लड सैंपल वगैरह डाले हुए रहते हैं। ये दिस इज द सेंट्रीफ्यूज मशीन which is used in your pathology, जहाँ पर ब्लड सैंपल्स का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब्स लगे रहते हैं ऐसे, these are the test tubes assumed to be in which the blood sample is taken। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है, टेस्ट ट्यूब थोड़े स्लैंट होते जाते हैं, दिस टेस्ट ट्यूब्स आर बिकमिंग स्लैंट लाइक दिस, ऐसे ऐसे स्लैंट होते जाते, और धीरे 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 तुम्हारे ब्लड सैंपल के अंदर जो हेवियर पार्टिकल यानी डेंसिटी, हेवी डेंसिटी वाले पार्टिकल, वो ऐसे बॉटम में जाते हैं, हेवी डेंसिटी वाले बॉटम में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अनुभव करते हैं ना, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mr/ओमेगा²। तो ज्यादा हेवी वाले जो है वो ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अनुभव करेंगे और बॉटम में जाएंगे, और जो हल्के डेंसिटी वाले पार्टिकल है वो ऐसे ऊपर ऊपर आएंगे। तो इस प्रकार कम डेंसिटी वाले और हाई डेंसिटी वाले पार्टिकल्स वी कैन सेपरेट फ्रॉम द ब्लड सैंपल by using a centrifuge machine. So these are the somewhat applications or examples of centrifugal force, कि कैसे ये हम इसको हमारे रूटीन वाले एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं हम इसका अनुभव करते हैं या देखते हैं, लेकिन ये कहाँ से आता है, कहाँ से अराइज हो रहा है, ये पता नहीं चलता, और इसीलिए हम इसको रियल फोर्स नहीं कहते, और इसलिए हम कहते हैं कि इसका ओरिजिन हमें पता नहीं है। So this is what about the difference or the distinguishing between the centripetal and the centrifugal force. Okay, ठीक।